Very good evening, class. We'll be starting the numericals of this chapter, arithmetic progression. Now we'll be dealing with the 3 marks type. Alright. So the question is like this. Question number 1. If the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than the 13th term, 20 more than the 13th term, comma, find the AP. So this is the question, 20 more than the 13th term. Now you see, question is like this. If the 10th term of an AP is 52, 10th term, so how will we write? We will write like this, given T10 equal 52. If the 10th term of an AP is 52, so how will we do? T10 is what? A plus 9D, which is 52. We will mark it as equation number 1. Next, and 17th term is 20 more than the 13th term. So we will write also 17th. 17th means what? T17. 17th term is means equal to 20 more than the 13th term, means what? 20 more than the 13th term. Is it clear? This is also given to you, students. See once again, 10th term is 52, so A plus 9D is 52, and 17th term is 20 more than the 13th term. Alright, so we'll simplify it. We'll again simplify it. Now T17 is what? A plus 16D. Now what is T13? A plus 12D plus 20. Now what we'll do, we'll transfer everything, plus A and here also plus A, so it will get cancelled. Now this 12D will bring it here, so 16D minus 12D equal to 20. 20 will keep as it is. This is constant, here also constant. Alright. Now 16 minus 12D is what? 4D. 4D is 20. So what we have? D equal to 20 by 4. When we cancel, 4 5 are 20. Is it clear? So D equal to 5. We mark it as equation number what? 2. Now we got D equal to 5. Now this value we'll put in equation number 1. Alright, using value of D in equation number 1. So 1 implies what we are getting? 1 implies A plus 9 into D. D is what? 5. D is 5 equal to how much? 52. 52 imply A plus 9 5 are 45, which is equal 52. So A equal, this will transfer here, 52 minus 45. So A equal how much? A equal here 7. Mark it as equation number 3. Now you see the last part. Both the conditions we have applied. If the 10th term of an AP is 52, 17th term is 20 more than the 13th term, find the AP. ठीक है, we have to find the AP. So हम लोगों का AP कैसे होगा? Required AP is, what is the formula? A plus D, A plus 2D, so on. Yes or no? So अब हम लोगों को क्या करना है? We have to put the value. So in place of A, 7, here 7 plus, now what is D? D is 5. 7 plus 5, then 7 plus 2 into 5, then so on. So what we get? 7 comma 12 comma 5 to 10 plus 7, 17. So this is our required AP. ठीक है students? 10th term of an AP 52 था, तो we have simplified it. A plus 90 52. 17th term क्या है? 20 more than the 13th term.
तो हम लोग ने सॉल्व किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ d. इसके बाद में वी हैव पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 सच दैट वी गॉट वैल्यू ऑफ a. नाउ रिक्वायर्ड AP is what is the formula? a plus d, a plus 2d, and then we got the answer. Now we'll do question number 2. We'll do question number 2. Question 2 is like this. Find the middle term of the AP. Find the middle term of the AP. What is the AP? 213, 205, after that 197, and the last one is 37. अब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? मिडिल टर्म ढूंढने के लिए 213, 205, 197 इस AP का मिडिल टर्म. इज इट क्लियर? Like suppose there is one AP 1, 3, 5, 7. तो मैं middle term let's say इसका 9. Then what is the middle term? If you cut this, what is the middle term? Middle term is this one. Yes or no? So something like that. Middle term we have to find out. But we don't know na how many terms are here. So now we will solve it. Middle term. Find the middle term of the AP. So first of all यहाँ पे क्या लिखना है? Here a equal 213, d equal 205 minus 213, d equal to minus 8, d equal to minus 8. Then after that what we have? We have the last term. Last term is what? Last term Tn equal to 37. Tn equal to 37. Is it clear? Now first of all we have to find number of terms. इस AP में कितने terms है? जैसे कि इस AP में जो एग्जाम्पल मैंने लिया था इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 टर्म्स. तो इसमें हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि ये मिडिल टर्म है. तो इसमें हम लोगों को पता करना होगा कितने टर्म्स है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि n का वैल्यू. तो विल सॉल्व इट लाइक दिस. सिंस Tn इक्वल टू 37 है तो Tn फार्मूला लगाना है हम लोगों को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 37. Now what is a value? 213 plus n minus 1 into d. In place of d what we can write? Minus 8, which is equal to 37. Now you see we have to find the value of n from here. Is it clear? So this you can write like this: n minus 1 into minus 8 equal 37. Now 213 we will put it in the right hand side. तो ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 213. Here what we have? Minus 8 times n minus 1 equal to, now when we subtract how much we'll get? 213 minus 37. 13, this will be 10, this will be 176. Alright, so we will be having minus 176. Minus minus will get cancelled, so n minus 1 will be 176 divided by 8. This 8 will come down. Now we will cancel it. 8 2 are 16, so remainder is 1, 16, 8 2 are 16. So what we will have? N minus 1 equal to 22. So in the next case we will have like this. We will have what? माइनस 1 को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. सो वी विल हैव n इक्वल टू 22 प्लस 1 23. n इक्वल टू 23. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर, वी हैव नॉट गिवन, नो, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ n इक्वल टू 23. नाउ यू टेल मी दिस 23 इज इट ऑड और इवन? इट इज odd number. So n equal to 23. Now this one is odd. Now when n is odd, then we have the formula for finding the middle term that I will be giving you now. We'll write like this as n is odd, so the middle term is, as n is odd, so the middle term is what? N plus 1 by
2th, n plus 1 by 2th, as n is odd, so the middle term is n plus 1 by 2th term. Now you see this will be the middle term, this will be the middle term. Now you see the question is what, is it finite or infinite? This is finite है, यहाँ जाके खत्म हो रहा है इसलिए finite है, ठीक है. So the middle term is this one. तो हम लोगों ने n का वैल्यू लगाना है, कितना आएगा 23 plus 1 by 2 th term. Now 23 plus 1 कितना होता है 24, 24 by 2 12th term. यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड सी आप लोग देखो, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP. देयरफॉर T12 इक्वल टू, नाउ T12 क्या होता है a प्लस 11d. फॉर्मूला में फिट करेंगे, a कितना आया हम लोगों का 213 प्लस 11 इंटू d का वैल्यू कितना था 23. सो व्हाट वी आर गेटिंग 213 प्लस 11. So what I was saying, in place of d we have to put -8, alright. This is d value, not 23, sorry. So -8. Now plus into minus, minus 88. Now 213 minus 88, what we are getting? We are getting 125. Alright, 125. You see once again, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP. तो ये AP क्या है, दिस AP इज फाइनाइट AP, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों को n का वैल्यू ढूंढना है इसमें, कि इस AP में कितने टर्म्स हैं. इज इट क्लियर. सो a इक्वल 213, d हम लोगों ने निकाला -8, tn 37 है, n टर्म दिया हुआ है. तो tn से हम लोगों ने क्या किया, n का वैल्यू कैलकुलेट किया, जो कि हम लोगों ने देखा ऑड नंबर है, ऑड है. तो एज n इज ऑड, सो द मिडल टर्म इज n प्लस 1 बाई 2th टर्म. तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, तो कौन सा टर्म आया 12th टर्म, यानी कि इस AP में 12th टर्म जो है वो मिडल टर्म होगा. तो T12 क्या आया, आंसर हम लोगों का 125. इज इट क्लियर. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. We'll do question number 3. It's like this. Find the sum of the series. Find the sum of the series 72 plus 70 plus 68 plus ... plus 40. अब देखिए आप लोगों के लिए ये सीरीज़ जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ आप लोगों को नया लगेगा, ठीक है. तो सीरीज़ और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ. ये 1 3 5 7 ये सब क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस. और जब हम लोग इसको प्लस करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या है सीक्वेंस, और ये हो जाएगा हम लोगों का सीरीज़. इसको कहते हैं सीरीज़. याद होगा आप लोगों को मैंने एक सिखाया था SN निकालने का, SN सम अप टू nth टर्म. तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो विल सॉल्व इट आउट. नाउ सबसे पहला इजीली हम लोग देखते हैं हाउ टू सॉल्व. हियर a का वैल्यू कितना है 72. व्हाट इज d, d इक्वल टू 70 माइनस 72. हाउ मच, -2. d इक्वल टू -2. Now what we'll do, we'll calculate SN here. Now SN we'll try to find out. Before finding, find the sum of the series. तो SN equal to what, क्या फॉर्मूला है, n by 2 2a plus n minus 1 into d. So ये जो हम लोग का लास्ट टर्म है, ये क्या होता है, ये nth टर्म है ना, nth टर्म है. तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो Tn जो है हम लोगों का 40 है. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को वही केस है, यहाँ पर हम लोगों को n का वैल्यू ढूंढना है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हम लोग जान नहीं रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. जैसे ही हम लोग n का वैल्यू ढूंढ लेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट Sn ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर बोला है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़. ठीक है, इस सीरीज़ में कितने टर्म्स है, n के वैल्यू कितने हैं वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, ठीक है ना. तो विल सॉल्व इट आउट. Tn क्या मैंने बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है 40. सो व्हाट इज़ a कितना आया 72
प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2 इक्वल 40। 72 को कहाँ ले जाएंगे यहाँ पर, तो आएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल 40 माइनस 72। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस को बाहर ले आएंगे, -2 n माइनस 1 इक्वल कितना होगा 10 माइनस 2 8। now we'll minus it, 72 minus 40 to 32 आएगा, we'll have 32 सॉरी, सो 32 यहाँ पे -32 होगा। ठीक है, 40 माइनस 72 क्या होगा -32, माइनस माइनस कैंसल, तो n माइनस 1 क्या आया हम लोगों का 32/2, विल कैंसिल इट, 16 आएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 16। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद व्हाट विल डू, -1 को हम लोग यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आने वाला है n इक्वल टू 16 प्लस 1 n इक्वल टू 17 आएगा। ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को पता चल गया, वी नो नाउ कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, इसमें इस सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 17, ये 17 टर्म्स का सीरीज़ है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, एस एन फॉर्मूला लगाना है, क्या है n/2 ओपन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को याद होगा ये फार्मूला मैंने सिखाया था कॉन्सेप्ट में। तो अब n का वैल्यू कितना देना है 17, S17 क्या आएगा 17/2 ओपन ब्रैकेट ट्वाइस इंटू a के प्लेस में हम लोगों ने 72 देना है, फिर n कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है हम लोगों का -2। अब इसको कैलकुलेट करना है, अच्छे से इसको कैलकुलेट करना है एंड देन विल गेट द आंसर। सो कितना आएगा 17/2, 72 2 आर 4, 7 2 आर 14, ये कितना हुआ, ये कितना आता है, ये कितना होगा 16, 16 2 आर 32 माइनस 32 कितना आएगा 17/2 इंटू 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, 112, 144 से 32 ले जाते हैं तो 3 इज 112। ठीक है, नाउ विल कैंसल, 2 5 आर 10, रिमाइंडर इज 1, 2 6 आर 12, तो कितना आएगा 17 इंटू 56। सो व्हाट विल बी गेटिंग फाइनल आंसर एज 952। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम ढूंढना है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, टी एन हम लोगों को पता है, टी एन 40 है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एन का वैल्यू। जैसे एन का वैल्यू आ जाएगा वी कैन फाइंड आउट एस एन, तो एस एन यानी कि S17 सारे वैल्यूज लगा देंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, बाकी सारा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। Question is like this, the sum of the 5th and 9th term, sum of the 5th and 9th term of an AP is 30, of an AP is 30. If its 25th term is, if its 25th term is 3 times the 8th term, 3 times the 8th term, find the AP, find the AP, find the AP। ठीक है, इस टाइप का मैंने सॉल्व किया था पहले, सिमिलर था, इस टाइप का नहीं। सो आई विल गिव यू द हिंट फॉर दिस, कैसे करेंगे। द सम ऑफ द 5th and 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30। एक AP दिया हुआ है आप लोगों को, और उस AP का 5th टर्म और 9th टर्म को जब हम लोग प्लस करते हैं देन वी गेट द आंसर 30। नाउ इफ इट्स 25th टर्म, 25th टर्म इज व्हाट 3 टाइम्स द 8th टर्म, ये कंडीशन है। ठीक है, फाइंड द AP। तो AP का क्या है पैटर्न, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो विल डू लाइक दिस, गिवन
सम ऑफ द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म गिवन व्हाट T5 प्लस T9 इक्वल टू हाउ मच 30, ये हम लोगों को दिया हुआ है। देखिए सम ऑफ द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म इज 30, तो सॉल्व करना है हम लोगों को। क्या आएगा a प्लस 4d प्लस a प्लस कितना 8d इक्वल टू 30। क्या आएगा a प्लस a कितना होता है 2a और 4 प्लस 8 कितना होगा 12d इक्वल टू 30। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू 30। तो फिर क्या आएगा 2 यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा a प्लस 6d इक्वल टू 15। 30/2 क्या होता है 15। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है इफ इट्स 25th टर्म इज, अब लिखेंगे ऑल्सो 25th यानी कि T25 इज 3 टाइम्स द 8th टर्म, यानी कि 3 टाइम्स 3 गुना 3 टाइम्स द 8th टर्म। समझ में आया स्टूडेंट्स, 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 8th टर्म। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को क्या है गिवन है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस 24d इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट करेंगे a प्लस 7d। ऑलवेज रिमेंबर ये बाइनोमियल है, a प्लस 7d, इसको ब्रैकेट करना है। अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे देन इट विल लुक मिस्टेक, इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस 3a प्लस 7d, देन इट विल बी अ मिस्टेक। तो इसको ब्रैकेट करना है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट a प्लस 24d क्या होगा, ये ब्रैकेट को हटाएंगे 3a प्लस 3 7 आर 21d, 3a प्लस 21d। ठीक है, क्या किया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया 3 इंटू a 3a, 3 इंटू 7 21। तो अब क्या आएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो व्हाट विल हैव, इसको भी यहाँ ले आएंगे a माइनस 3a प्लस 24d माइनस 21d इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, इम्प्लाई नाउ a माइनस 3a क्या होता है माइनस का 2a। ठीक है, 24 माइनस 21 क्या होगा 3d इक्वल टू 0। नाउ माइनस को हम लोग हटाएंगे तो क्या आएगा, चेंजिंग करने से माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 3d इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट क्या आएगा 2a माइनस 3d इक्वल टू 0। मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व करना है और सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालना है। जैसे a और d का वैल्यू आ जाएगा देन वी कैन गेट द रिक्वायर्ड AP। सो यहाँ से हम लोगों को, मैं बस यहाँ से बता दे रहा हूँ, यहाँ से मैं नोट्स में दिया हूँ, वहाँ से आप लोगों ने देख कर लेना है। ठीक है, सॉल्विंग 1, 2 a का वैल्यू कितना आएगा, d का वैल्यू कितना आएगा, ये ढूंढना है। ठीक है, सॉल्विंग 1, 2। उसके बाद रिक्वायर्ड AP क्या है a प्लस d, a प्लस 2d। ठीक है, तो इसके बाद आपको लोगों का फाइनल आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा आप लोगों का 3, 5, 7 डॉट डॉट, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी नोट्स में दिया हूँ, वो आप लोगों को देख लेना है। ठीक है ना, ठीक है, सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके a को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2a है और यहाँ भी 2a आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d निकाल लेना है एंड देन AP ऐसा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question is like this: find the 28th term of an AP. Find the 28th term of an AP. 28th term of an AP whose third term is 7. Whose third term is 7 and the seventh term exceeds 3 times the third term. 3 times the third term by 2.
देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को मेन जो है इसमें क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। बोला जा रहा है फाइंड द 28th टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहला क्या लिखना है, T20 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 28th टर्म ढूंढना है। हुज थर्ड टर्म इज 7। तो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, थर्ड टर्म T3 क्या है, 7 है। एंड द 7th टर्म, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, a+2d = 7। मार्क करिए इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है, एंड द 7th टर्म ऑल्सो T7। 7th टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। इसको समझना है, एक्सीड्स मतलब 7th टर्म ज़्यादा है, ठीक है। 7th टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। 7th टर्म क्या है, कितना ज़्यादा है, 3 times द थर्ड टर्म बाई 2, यानी कि 3 गुना थर्ड टर्म का और 2 और +2, 3T3 + T2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या आएगा, a+6d = 3 × a+2d + 2। तो सॉल्व करेंगे, a+6d = 3a + 6d + 2। अब ये 6d क्या होगा, कैंसिल होगा। इसको यहाँ लाएंगे, a - 3a = 2। क्या आएगा, -2a = 2। इम्प्लाई देते हैं। तो फिर क्या होगा इसके बाद, 2/2 -2/2 कैंसिल होगा। ये कितना आया, -1। मार्क करिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ लगाना है, इसमें, सॉरी ये 1 था, ये क्या होगा 2। तो a = -1 यहाँ लगाना है। तो लिखेंगे हम लोग यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो आफ्टर दैट 1 इम्प्लाई क्या है, a + 2d = 7। So what we'll do, a + 2d = 7. So what we are having, 2d = now this will transfer here, 7 + 1, 2d = 8. So d = 8/2, how much, 4. d = 4. We'll mark it as equation number 3. Now see, हम लोग को क्या ढूंढना है, T20। Now T20 ढूंढने के लिए क्या होगा, a + 19d। T20 क्या है, a + 19d। Hence T20 = a + 19d, ठीक है। ये याद रहेगा। a का वैल्यू हम लोग आएंगे -1 + 19 × d का वैल्यू कितना है, 4। 19 4 are 76। नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, 76 - 1 75। ये हुआ आप लोगों का आंसर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द 28th टर्म ऑफ एन एपी, यानी T20 क्वेश्चन मार्क, हुज थर्ड टर्म इज 7। तो T3 क्या है, 7 हम लोगों ने सॉल्व किया, a + 2d = 7 लिखा। एंड द 7th टर्म यानी कि T7 एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाई 2, यानी कि 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन जो भी दिया हुआ है हम लोगों को, वो कंडीशन सही से लगाया जाता है, ठीक है। If you are able to put the condition nicely, then we'll get the answer. Is it clear? Or else we won't. तो इसको सॉल्व करते गए, a का वैल्यू आया। आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने d वैल्यू निकाल लिया। एंड देन T20 क्या है, a + 19d। फाइनली वी गॉट 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। It's like this. The 10th and 18th term, the 10th and 18th term, 10th and 18th term of an AP are 41 and 73. 41 and 73. Find 26th term. Find 26th term. ये आंसर है इसका 105। ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये देखिए कैसा होगा, 10th and 18th टर्म ऑफ एन APR कितना, 41 and 73। T10 कितना है, 41। T18 कितना है, 73। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू हम लोगों को ढूंढना है और d का वैल्यू। जैसे आ जाएगा
T26 हम लोग निकाल लेंगे। T26 क्या होगा, A प्लस 25D। ठीक है, तो आई होप यू कैन ट्राई दिस एंड शो मी इन द ग्रुप, ऑलराइट, और यू कैन आस्क मी व्हाटएवर इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, find the sum of the odd numbers. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. Between 0 and 50 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी सम करना हो ना, हमेशा दिमाग में ये रखना है आप लोगों को कि SN ढूंढना है, सम अप टू NH सम। लेकिन इसमें तो हम लोगों को AP पता नहीं है, AP क्या है, तो देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, ये दिमाग में रखिए, ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर होता है। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 50, तो क्या लिखेंगे, गिवन AP इज। अब यहाँ से लॉजिक स्टडी करना है, समझना है हम लोगों को। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या होगा, पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। कम से कम 3 या 4 टर्म्स लिख के हम लोगों को डॉट 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 करना है। लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, जस्ट 50 से पहले 49। ठीक है, तो अब AP जैसे हम लोगों को मिल गया तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से वही टेक्निक, A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। नाउ ये क्या है हम लोगों का TN क्या है 49। TN क्या है 49। तब देखिए फिर से वही हम लोगों को करना है, N यहाँ पर ढूंढना है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, N ढूंढना है। ठीक है ना, तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। TN क्या है 49, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल 49। नाउ A इज़ वाट, A इज़ 1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, इन प्लेस ऑफ D वाट वी कैन राइट 2 इक्वल 49। यहाँ से हम लोगों को N का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस। क्या आएगा, N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 49 माइनस 1। ठीक है, 49 माइनस 1 क्या आएगा, 2N माइनस 1 इक्वल 48। तो N माइनस 1 इक्वल 48 बाई 2, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8। क्या आएगा, N इक्वल टू 24। इसको यहाँ ट्रांसफ़र करिए, 24 प्लस 1 N इक्वल 25। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर कितना 1। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हम लोगों को पता हो गया कितने ऑड नंबर्स है 0 और 50 के बीच में, 25 ऑड नंबर्स है। तो व्हाट विल डू, हम लोग को क्या करना है, S25 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये लगाना है। नाउ क्या लिखेंगे, SN क्या है, N/2, फिर से वही लिखिए, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है स्टूडेंट्स, तो S कितना 25, क्या आएगा 25/2 ट्वाइस इंटू A कितना है A है 1 प्लस N कितना है 25 माइनस 1 इंटू D कितना है वैल्यू, D 2 है। इसको जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करना है। 25/2 2 प्लस, अब ये कितना होता है 24 इंटू 2 48, कितना आएगा 25/2 इंटू 50, कैंसिल करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ये होगा हम लोग का आंसर। ठीक है, सिंपल है ये। सम ऑफ द ऑड नंबर्स ढूंढना है। AP, जब भी इस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन आए आप लोगों को, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, और लगे कि हाँ AP दिया हुआ नहीं है, तो इस लॉजिक को स्टडी करना है। ठीक है, अच्छे से स्टडी करना है एंड देन AP निकालना है। AP कैसा होता है 1 3 5 7 49 है। AP करेक्टली अगर आ गया तो उसके बाद फिर प्रोसेस सिंपल है। लास्ट टर्म TN 49 है, सॉल्व करते करते N का वैल्यू निकालना है और फिर SN यानी कि S25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ऑलराइट, द 16th टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं बोल रहा हूँ द 16th टर्म ऑफ एन AP, द 16th टर्म ऑफ एन AP is 5 times its third term, is 5
times its third term, 5 times its third term. If its 10th term is 41, if its 10th term is 41, then find the sum of first 15 terms. ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है. तो द 16th term of an AP is 5 times its third term. If its 10th term is 41, then find the sum of first 15 term. इसको सॉल्व करते हैं. 16th term of an AP is क्या दिया हुआ है, लिखना है given. T16 is 5 times its third term, यानी कि 5 into T3. इसको सॉल्व करना है. A plus 15D क्या आएगा, 5 into A plus 2D. क्या लिखेंगे, A plus 15D इक्वल 5A plus 10D. तो इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है. A plus 15D माइनस 5A माइनस 10D इक्वल टू 0. तो A माइनस 5A क्या होगा, माइनस 4A. 15D माइनस 10D क्या होगा, प्लस 5D इक्वल 0. माइनस कॉमन लेके हटाना है. 4A माइनस 5D इक्वल टू 0. मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट है इफ़ इट्स 10th टर्म इज 41, यानी कि T10 क्या दिया है, 41. क्या लिखेंगे, A प्लस 9D 41. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म. क्या ढूंढना है आप लोगों को, S15. ठीक है, इसको समझिए. क्वेश्चन समझ में आया. T16 कितना दिया है, 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, यानी कि 5 इंटू T3. सॉल्व किए, ये आया एक इक्वेशन. 10th टर्म इज 41, यानी T10 41 है, तो A प्लस 90 41. ढूंढना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही टेक्निक है, सॉल्विंग 1 and 2 खुद से कर लेना है आप लोगों को. सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. यहाँ देखिए, यहाँ 4A है और यहाँ A है. इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो हम लोगों को A का वैल्यू पता चल जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा. उसके बाद में A और D का वैल्यू जैसे हम लोग निकाल लेते हैं. देन आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग A and D, देन व्हाट वी हैव, S15 मीन्स N का वैल्यू कितना है, 15. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ S15. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आप लोगों का, इसका जो आंसर होगा A का वैल्यू 5 होगा. ठीक है, A का वैल्यू होगा 5. चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस थिंग्स इन द नोट्स से मैच कर लीजिएगा. A 5 होगा, D का वैल्यू आएगा आप लोगों का 4. और वैसे S15 जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का S15 आ जाएगा 495. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेम है, सिमिलर है, यहाँ से तो आप लोग कर सकते हो. ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो देन लेट मी नो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Number 9, we'll do question number 9 now. Which term of the AP, which term of the AP 5, 15, 25, 5, 15, 25 ... will be 130 more than its 31st term. Its 31st term. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में लॉजिक को स्टडी करना है. तो सबसे पहले क्या लिखना है, AP क्या दिया, जब AP दिया हो तो AP लिखना है. गिवन AP इज, AP क्या दिया हम लोगों को, 5, 15, फिर इसके बाद 25 ... तो विच टर्म ऑफ द AP विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म. कौन सा टर्म है, कितने नंबर का टर्म है वो. ठीक है, तो लिखेंगे लेट इट बी nth टर्म. ठीक है, ये टेक्निक भी सीख लीजिए, ये भी एक वेराइटी है क्वेश्चन का. लेट इट बी nth टर्म. तो इम्प्लाइज Tn, कंडीशन लगाएंगे
विच टर्म ऑफ द AP विल बी 130 मोर, यानी कि 130 मोर देन इट्स 31st टर्म T31, ये लॉजिक है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है हम लोगों को, ठीक है, इसको समझना है। विच टर्म, लेट इट बी nth टर्म, तो Tn क्या है, 130 ज़्यादा है, 130 मोर देन द 31st टर्म, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू T31 क्या होगा, a प्लस 30d प्लस 130, यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेना है। a का वैल्यू कितना है 5, d का वैल्यू 15 माइनस 5 क्या होगा 10, ठीक है, d कितना आया 10 आया। तो a कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 10 इक्वल 30 इंटू डी कितना आया 10 प्लस 130, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नाउ क्या लिखेंगे, 10 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल, अब ये 30 इंटू 10 क्या होता है 300 प्लस 130, कैसे लिखेंगे 10 n माइनस 1 इक्वल 430, तो n माइनस 1 क्या हुआ 430 बाई 10, तो n इक्वल टू क्या होगा 40, ये कितना आया 43, तो 43 माइनस 1 को यहाँ ले जाएंगे, 43 प्लस 1, n कितना आया 44, देयरफॉर इट विल बी 44th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को समझना है क्या है, फिर से देखिए, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म, तो AP दिया हुआ है तो वैसे लिखना है, लेट इट बी nth टर्म, तो Tn क्या है 130 ज़्यादा है देन द 31st टर्म T31 प्लस 130, सॉल्व करना है। यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करते करते n का वैल्यू आएगा, तो n का वैल्यू आया तो क्या है 44 आया, तो वी कैन से दैट इट इज़ 44th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6, मैं जस्ट इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज 10th क्वेश्चन एंड अदरवाइज द लेक्चर विल बिकम मोर लेंथी, आई थिंक मोर देन 30 मिनट्स का हो गया होगा लेक्चर, तो मैं अब इसको रीड कर देता हूँ, ये मैं नोट्स में आप लोगों को दिया हूँ। द 9th टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म, इफ इट्स 5th टर्म इज 22, फाइंड द AP, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद से करना है, ट्राई योर सेल्फ, ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं बना दिया हूँ। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इट्स लाइक दिस, फाइंड द सम ऑफ all 3 digit, find the sum of all 3 digit numbers which are multiples of 11, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और है, ख़त्म है, इसके बाद ट्रिकी है, इसको आप लोगों को देखना है। मैं सारे वेराइटी बता दिया, जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस का वेराइटी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11, फिर से वही लॉजिक है, इसमें आप लोगों को ख्याल करना है। AP क्या है, पैटर्न पहले वो निकालना है, तो गिवन AP लिखना है, गिवन AP इज, अब थोड़ा सा स्टडी कीजिए इसको, मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या होता है, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, कहाँ तक जाएगा ये 99, 11 10 और 110, यहाँ से जो है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला क्या होगा 110, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, तो 110 से स्टार्ट होगा। तो पहला क्या हुआ 110, 11 10 आर 110, फिर 11 11 आर कितना होता है 121, सो दूसरा क्या हुआ 121, फिर 11 12 आर क्या कितना होता है 132, क्या होगा 132, ऐसे करके। तो ये कहाँ तक जाएगा 11 इंटू 90 तक जाएगा, 11 9 आर 990, ये कहाँ तक जाएगा 11 9 आर 990, क्योंकि 11 इंटू 91 अगर हम लोग करते हैं तो कितना डिजिट आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 1001,
1, तो ये हो गया हम लोगों का 4 डिजिट, तो हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लॉजिक को स्टडी करना है। तो मिनिमम लोएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 11 10 आर 110, फिर 11 11 आर 121, 11 12 आर 132, फिर उसके बाद 11 9 आर 99, 11 इंटू 90, 1190 तो 990, फिर 91 टाइम्स करने से तो ज़्यादा होगा। तो ये हम लोगों का AP। अब AP मिल गया, तो देन आफ्टर दैट थिंग्स आर वेरी इजी। आई वोंट सॉल्व इट, आई जस्ट गिव द हिंट सो दैट यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, A 110 है, D है 121 माइनस 110 कितना आया, D है 11, उसके बाद आप लोगों का TN क्या है 990। अब यहाँ पे ये जो TN है 990, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू D 990, इसको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करके यहाँ से n का वैल्यू निकलेगा। A और D तो हम लोग जान रहे हैं ना, इसमें यूज़ करके n निकालना है। जैसे n आ जाएगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, तो उसके बाद हम लोग SN निकाल लेंगे। n कितना आता है, n जो है आप लोगों का, n जो है सॉल्व करने पर n आएगा 81, ठीक है, n आएगा 81, तो S81 आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। S81 होगा, S81 आएगा 44550, 44,550 S81 होगा, ठीक है। इसी ढंग से आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू ट्राई क्वेश्चंस एंड फिनिश इट ऑफ। इट्स लेंदी, वेरी लेंदी वीडियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट वन 12 बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या है, 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय कितना, 5, डिविजिबल बाय 5। याद रखना है आप लोगों को, इवन नेचुरल नंबर। हाँ, सॉल्यूशन डिविजिबल बाय 5 कौन सा होगा, गिवन AP लिखना है, गिवन AP इज पहला 5, फिर दूसरा 10, ये सारा इवन नंबर भी है, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, ऐसे करते जाएगा। 100 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। 100th, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 100 है। यहाँ लिखना है आप लोगों को, A कितना है 5, D कितना है 10 माइनस 5, D हो गया 5, n है यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पर n तो है 100, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एकदम सिंपल है, यहाँ से SN कैलकुलेट करना है, यानी कि S 100 कितना आएगा आप लोगों का सॉल्व करने के बाद, S 100 आएगा स्टूडेंट्स 50500, ठीक है। ये सिंपल है, सिर्फ AP आप लोगों को पता करना है, ठीक है ना। AP आप लोगों को मालूम करना है AP कैसा होगा, ठीक है ना। 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 5 10 15 20, तो 100 इवन, तो n का वैल्यू कितना है 100। नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क्स सो दैट यू कैन ट्राई इट। Alright, just wait a second. Question number 12, no? Find the sum of 100 even natural numbers divisible by 5. Given AP is 5, 10, 15, 20. 5 तो हम लोगों का even नहीं है ना, odd है। 15 वो भी odd है। So first one will be 10. After that 20. My mistake, huh? Sorry. It will be like this: 10, 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30, ऐसे करके जाएगा। तो A आ जाएगा कितना, A आप लोगों को आ जाएगा, ओके माई मिस्टेक, सॉरी स्टूडेंट्स। A इक्वल टू 10, D आ जाएगा आप लोगों का 20 माइनस 10, D हो जाएगा 10, और उसके बाद में N तो दिया हुआ है, N 100 है। सो आफ्टर दैट, हाँ, नाउ इट्स करेक्ट, ऑलराइट। सॉरी वंस अगेन, हाँ, बिकॉज आई मेड मिस्टेक आउट हियर। ये इवन हम लोगों को लेना है, हाँ, इवन 10 20 30 ये सारा इवन है, ऑड नंबर नहीं लेना है, ठीक है। नाउ ट्राई क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5C का आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ट्राई करना है आप लोगों को। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस कर चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 ये ट्राई करना है। ये हो गया आप लोगों का स्लैब 1, ठीक है।
फिर स्लैब 2 से आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 9, 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, ये सारा नंबर्स आप लोग जो है अपने बुक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ट्राई करना है। बाकी जो क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ वो ट्राई नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा क्वेश्चन ज़रूरी है। 18, 19, फिर है लास्ट आप लोगों का एक्सरसाइज 5D से क्वेश्चन 1 का ऑल पूरा ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, ये 2 करना है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है। Alright students, so these are the things, these are the try questions, homeworks which you can try it, and that's it for this chapter. Now this chapter is over. Alright, thank you students.